Thailand, I've enjoyed so much. I think Thailand जैसा tourism करता है, भाई they've aced it. इंडिया इज़ एन एक्सीलेंट कंट्री बिकॉज ऑफ सम थिंग्स एंड दैट वही चीज़ें फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी पैदा करती हैं. कौन से देश हैं जो अच्छा ट्रीट कर रहे हैं और कौन से देश हैं जो ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है वहाँ पे इंडियंस के लिए ट्रीटमेंट. बिगेस्ट केयर दैट यू हैड व्हाइल ट्रैवलिंग. कोविड के टाइम पे आई वाज इन रशिया, मेरे को कोविड हो गया था. ट्रैवल इंश्योरेंस काम करता है? हाँ करता है. I've never had to use it till now. Touch wood. My motivation to travel does not come from virality. My motivation to travel comes from where I want to go. I do not advise the paragliding thing again, but yeah, you can go. कौन सा क्रेडिट कार्ड काम करता है सारे कंट्रीज में? I'm using an Amex. Don't get the Amex. Because you travel abroad a lot. How expensive is it? It's a different experience when you read something in books and you go experience that. Northern Lights is of course one. For anyone who does not travel much, मैं अगर वहाँ चला गया मेरा पासपोर्ट हो गया तो क्या होगा? I mean, the people travel for many reasons, right? Some people travel to find themselves. Some people travel because they're running away from something. A lot of people, when they go through a breakup, they travel. A lot of people travel because work is hectic and they're looking away to Vijay Mallya भाग रहा है इसलिए क्योंकि उसके पीछे लोग लगे हैं. Why do you travel? I travel, it started with, I think, finding myself and escaping. Escaping in the sense ki trying to find a safer space for myself, I think. क्योंकि where I was very chaotic, very troublesome थोड़ा बहुत, तो I started traveling to find peace. I think that's what it was for me. And then eventually धीरे धीरे I found myself in traveling in the mountains somewhere. वहीं पे दिल छोड़ आई, अभी उसी को सर्च करने जाती हूँ बार बार. अभी तक मिला नहीं है. And I don't think मिलेगा. And when you started traveling, were you a traveler before you became a content creator? Yeah, I was. So I did engineering near Shimla. सोलन शिमला के बीच में एक कॉलेज है, JP करके. उनका एक नोएडा में भी कैंपस है. मेरे को एडमिशन मिला था एंड तब मेरे को पता चला वो शिमला में भी कैंपस है. तो मैक्स बेस्ट सिचुएशन वेयर यू कैन एस्केप था से मेरे को तो शिमला ही जाना है. थोड़ा वो सिचुएशन, दैट कॉलेज वाज वेरी 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 स्ट्रिक्ट. छोटा सा टाउन था, वाकना घाट करके, मतलब बिल्कुल एक जहाँ पे बस छोड़ती थी उससे 3 किलोमीटर और नीचे था, बिल्कुल खड में कहीं चुपचाप से क्वाइट. कुछ पता नहीं चलता था कि दुनिया में बाहर क्या चल रहा है. एंड वार्डन बहुत स्ट्रिक्ट थी, इन टाइम होता था, यूनिफॉर्म होती थी. You have been bamboozled into speaking to someone who has not traveled in the last 5 years, unless for work. So I only travel when there is work. There's no personal travel. 5 साल, what do you do? Like what are you passionate about? Not traveling. My passion is to stay at home. I'm classically the kind of person who enjoys, like अगर कोई छुट्टी है तो मेरा लॉजिक है कि घर पे रहने को मिलेगा, तो I will enjoy this, right? So so you had no reason, you never wanted to find yourself or see. मुझे लगा अगर ढूंढना होगा तो घर पे ढूंढ लूंगा. घर पे ढूंढ लूंगा. It doesn't. I don't know what is wrong with me, but travel for some reason doesn't work for me. I need a purpose to go somewhere. If I go somewhere for work, then I can travel once I go there. So like if let's say there's a shoot, I'll go there and then I will take 2-3 days आगे पीछे and then I will travel and explore for sure. But मजा नहीं आया कभी? हाँ पता नहीं, पर मैं खुद से नहीं जा पाता. मतलब I cannot कि like 4 दिन खाली हैं कहीं घूमने चलते हैं. I just can't do it. तभी तो मैं तो इनवाइट करने का. तुम ढंग की जगह गए नहीं, फिर मेरे को लग रहा है तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं अच्छा हुआ. तो पहाड़ों पे गए हो कभी? हाँ नहीं, एक्सपीरियंस अच्छा रहा है. मतलब जो मैंने अपनी लाइफ में 3 बार ट्रैवल किया है वो तीनों अच्छा था. I genuinely enjoyed. I actually miss, like I remember I've only traveled in very rare cases. I remember the last time that I traveled for fun sake, like traveling sake से, was this small town called Kasauli. It's not a small town, it's a decent town, Kasauli. And 3 friends of mine, random plan, and so it happens and we went there. We had a very decent time. मुझे याद हम तीनों यही बात कर रहे थे कि यार ऐसा भी महसूस होता है क्या, ऐसा भी लगता है कि कोई प्रेशर नहीं फील हो रहा. But this is like 5 years ago. And then you went to Kasauli 5 years ago. 5 years ago. That is my. And then उसके पहले एक बार मैं शायद I think उसके बाद 2016 में मैं एक बार मसूरी इतना ज़्यादा वो है. अच्छा देखो, to be fair, if you go to a place like Kasauli, maybe even I would not be, like excited to travel again. But like when no offense to anyone. I am the person in the group that people hate, which is the one ki like if there's a plan and there's a good location, I am the one who says कि मैं नहीं जा सकता. Okay, yeah. Right. I actually have a best friend who does not like to travel and उसको मैं बहुत टाइम से कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ. उसको गाड़ी में उठा के बस मनाली जाके मैं ड्रॉप करती हूँ. हाँ, मुझे जबरदस्ती ले जाना पड़ता है लोगों को. और फिर भी I travel like
love to travel, hate to travel, travels. Okay. But for work. हाँ ट्रेवल्स टू हाँ भाई Yeah. मतलब ट्रेवल्स Maybe we'll विद extend. बिचिंग ट्रैवल वाला कि अरे यार काम था जबरदस्ती ले आए तुम लोग मुझे आई नो आई एम द नाइटमेयर वही तो मुझे क्वेश्चंस बनाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी मैंने कहा पूछूं क्या है मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है My God, very interesting podcast I'm on. हाँ. मतलब I've never spoken to अ हेटर अ ट्रैवल travel hater honestly. क्यों जाती हो तुम घर पे रहा करो आई एम योर लाइक My क्लासिक mom will like you. हाँ वही आई एम द पेरेंट दैट सेज की क्या जरूरत है क्या बेटा जरूरत और है? वो भी इतना दूर क्यों जा रही हो Yeah. पास में भी तो घूम सकती हो हम लोग आज पास में रेस्टोरेंट क्या गुड़गांव? आज रेस्टोरेंट चल लेते हैं संजय वन जाके वॉक करके आते हैं. आई ऑल्सो डोंट लाइक ईटिंग आउट बाय द वे Honestly, even I don't. वो I मुझे think नहीं मेरे समझ को में आता आई वुड रैदर ट्रैवल उससे अच्छा ये है कि आई वुड रैदर ट्रैवल eating out और travel तो बहुत ही गजब कंपैरिजन तुमने किया, but I think eating out के सेंस में जिसको even कोई I would. एक्सपीरियंस नहीं होता वो ऐसी बातें करता है बट इवन आई थिंक ईटिंग आउट मेरे लिए मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि आई एम कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग एंड देन आई एम माई नंबर ऑफ टाइम्स दैट आई ईट आउट इज़ टू हाई. तो मेरे को ट्रिप्स पे ही हो जाता है कि बस मेरे को घर जाके मम्मी की दाल चावल खाना है बस और कुछ नहीं करना. सो आई प्रेफर ईटिंग इन एंड आई ऑल्सो फील आई हैव ऑल्सो डेवलप्ड लाइकिंग फॉर कुकिंग. तो मेरे को लगता है जो बाहर मिल रहा है मैं घर पे बनाऊंगी सो इट बी हेल्दियर. सो यूजुअली होता नहीं है बट येस. डू यू ट्रैवल लाइक टू ट्रैवल विद पीपल और डू यू ट्रैवल Not with a Alone. lot of people. I usually travel with my partner. It's easier and we both are very aligned. हमें same चीज़ें अच्छी लगती हैं. And एक I think when I'm digressing here, but if you really want to see how compatible you are with the other person, जाके एक ट्रिप पे चले जाओ उनके साथ बस. हाउ एक्सप्लेन यार पता नहीं. आई थिंक ट्रैवल पुट्स यू इन दी सिचुएशंस दैट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि वो कि फॉर एग्जाम्पल तुम एक नई सिटी में हो एंड तुम्हें फिगर आउट करना है तुम्हें खाना क्या है. सो जस्ट how quick you are on your toes and what apps you would look at or what searches you would do और किसी ख़राब सिचुएशन में तुम कैसे रिएक्ट करोगे, दूसरे इंसान को कैसे देखोगे, कैसे तुम कंसिडर करोगे, रूम में कैसे रहना है. सो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक पुट यू इन अ वेरी गुड स्टेट टू जज द अदर पर्सन कि तुम उसके साथ रह भी सकते हो कि नहीं. सो ट्रैवल आई थिंक ट्रैवल इज़ अ वेरी गुड मतलब I should not this is my trick I should not let the person who likes me travel with me क्योंकि immediately that person will realize कि यार ये तो यार इस इंसान के साथ तो मैं नहीं रह सकती कैसा है यार नहीं बट आई थिंक कहीं गया ही नहीं वहां जाने के बाद होटल में सो गया जाके. I think you are one trip away from liking travel. I think. No, I'm sure. It's Yeah. my problem is not the experience itself. My problem is internal, where I the kind of person who does not feel that I should. Are you a workaholic? No, I'm not that. Also, मैं बता रहा हूँ क्या है मुझे. I think after 30 you also become aware of your problems. Yeah. You are a problematic person, but you are an aware problematic person. I agree. आप पहले ही सॉरी बोल देते हो कि देखो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने वाला हूँ. Delusional नहीं होते तुम 30 के बाद या. गलतियां तो नहीं सुधरती. I think my problem is that for some reason I don't feel that I deserve to enjoy that much in life yet, because of which I actively like when I go there I feel guilty. This is what I realized. So if I enjoy a lot, I feel guilty about ये enjoying. तो बहुत ट्रॉमा. हाँ, नहीं और कोई ऐसा भी नहीं किसी ने मुझे मारा भी नहीं बचपन में ऐसा कि उसकी वजह से मुझे ऐसा ट्रॉमा हो जाए. मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता. मतलब मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं ब्लेम कर सकता कि इन्होंने मुझे बहुत रोक के रखा था या ज़्यादा खुला छोड़ दिया था इसलिए मैं ऐसा हूँ. मेरी अंदर कभी है. Oh shit. So in any sense, but I do. I have no more answers for you. मैं भी ये तब से सोच रही हूँ. I will come back to you in a few days and think about this. But I do enjoy the vicarious idea of traveling, right? So for example, one of the things that excites me a lot is traveling abroad, which I don't get to do. I think जिसने 2016 में लास्ट टाइम मसूरी गया था ऑब्वियस ही बात है. I've only done it for work. So I never gone to the locations that people generally aspire to go to. Like if I go to the US, I go to the US for work, right? But I would not go there to like I'm at Huntsville, Alabama for 2 days and then I come back. Yeah. Right? I will see the space center and say यार तो बहुत अच्छा था. अच्छा कहाँ गए हो इंडिया के बाहर? इंडिया के बाहर I've been to the US, I've been to Singapore, I've been to HK. That's it. Okay. That's the only 3 places that I've been to. And all of these were work related. That's it. Never beyond work. I'm a very this is the reason why I need to ask the question. थोड़ा तो जज कर रही हूँ मैं मतलब I think I'm sure everyone ये सब कटेगा. ये सब कट रहा है राइट. एंड में बस ऐसा लगता चाहिए कि वृंदा ने पूछा लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं. मैंने कहा कि आपके बारे में बात करने आए थे हम लोग. I'm sorry I don't want to talk about it. So But there is something that really excites me, and I think also it's also budgeting as well. For a lot of people, I think because you travel abroad a lot, right?
surprisingly a lot. How expensive is it? It is, Europe is very expensive, especially countries like Finland or Norway. वहाँ पे even now I don't like to go and eat out क्योंकि it becomes so expensive. एक बारी मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती हूँ 10-15 हज़ार रुपये का बिल आ जाता है, just normal things. क्योंकि मतलब वहाँ पे है तो यूरो, बट जब तुम कन्वर्ट करते हो 3 यूरो देखने में ज़्यादा नहीं लगता, बट अब 100 का पहुँच चुका है यूरो, तो है वो 300 रुपये की चीज़. तो एनीवे, सो आई थिंक इवन व्हेन आई डिड नॉट हैव, अब तो टचवुड है मेरे पास पैसे, बट इवन व्हेन आई डिडंट हैव मनी आई यूज्ड टू स्टार्ट बैकवर्ड्स. मैंने 3-3 हज़ार रुपये की ट्रिप भी की हुई है कॉलेज में. आई थिंक वी कट जब हम पहले बात करे थे, बट आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन कॉलेज एंड उस टाइम उस टाइम जेन्युइनली बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे. मतलब 2-3 हज़ार रुपये जो बचते थे, या फिर बर्थडे पे किसी ने, किसी रिश्तेदार ने दे दिया, किसी पास कुछ गया, सो आई यूज्ड टू सेव दैट मनी. आई वाज जेन्युइनली ऑलवेज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग. तो मेरे को होता था बस कि ट्रैवल करना है, जितने पैसे हैं, शॉपिंग नहीं, ये नहीं वो नहीं, बस मेरे को ट्रैवल करना है. तो 3,000 रुपीज़ आई यूज्ड टू बैक ट्रैक कि चल ठीक है, 3,000 रुपये मेरे पास हैं, तो उसमें से मेरे को ट्रैवल पे कितना करना चाहिए, मेरे को स्टे पे कितना करना चाहिए, उस हिसाब से मेरे को कौन सी जगह देखना चाहिए. अब मैं 3,000 रुपये के बजट में गोवा तो जा नहीं सकती, तो आई यूज्ड टू सी ट्रैक पे जा सकते हैं, क्योंकि ट्रैक पे जाके ऊपर अगर तुम्हें टेंट भी लेना है, वो मे बी तुम्हें 500 रुपये का मिले. एक बेड लेना है 500 रुपये या फिर उससे कम का मिलेगा, या फिर हॉस्टल में रहना है नॉट मोर देन 500 रुपीज़. देन आई यूज्ड टू सी कि चल 500 रुपये इस पे, 500 रुपीज़ का मे बी बस टिकट आना जाना, लोकल ऑर्डिनरी बस में जाना होता था. और फिर चलो फिर बचे तुम्हारे पास 2,000 रुपये. 2,000 रुपये में देखो, अगर तुम्हारा दिन का 500 रुपये का कुछ बजट है, खाना एंड रहना इज़ 1,000 रुपीज़, देन यू सी ओके दिस इज़ हाउ लॉन्ग यू कैन ट्रैवल फॉर. सो आई यूज्ड टू गो फॉर 2 days. आई यूज्ड टू गो टेक एन ओवरनाइट बस, आई यूज्ड टू लैंड, डू द ट्रैक, स्टे ओवरनाइट, कम डाउन एंड देन कम बैक टू कॉलेज, और 3,000 रुपये में ट्रिप हो जाती थी. सो दिस इज़ वॉट आई स्टिल डू. मैं देखती हूँ कि मेरा इतने का बजट है, एंड देन बैक ट्रैक. लाइक आई हैव डन, व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग तब तो मेरी फुल टाइम जॉब थी, एंड आई डिड हैव अ गुड सैलरी, बट आई डिडंट हैव अनलिमिटेड मनी कि भाई बैंक में रखे हैं मेरे पास बहुत. एंड इवन फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स दैट आई वाज डूइंग माई जॉब, वो आई यूज्ड टू लिव पे चेक टू पे चेक, बिकॉज सारे पैसे मैं ट्रैवल पे उड़ाती थी, लिटरली जीरो सेविंग्स. एंड देन आई स्टार्टेड सेविंग मे बी 3 साल बिफोर दिस, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू, बट आई मीन व्हाटएवर. तो आइसलैंड, वो आपके बिजनेस में चला जाएगा. या तो आइसलैंड मैंने किया था फर्स्ट ट्रिप, जैसे ही प्रोबेशन खत्म हुआ, आई वाज लाइक चलो भाई अब यूरोप चलेंगे. आइसलैंड मैंने किया था. आई वाज वर्किंग इन दुबई, सो आई स्पेंट on 2 people I spent about 15,000 dirhams, which was around 3 lakhs for a 12-day trip where I rented a car and I went to 3 lakhs per person? No, 3 lakh total. 3 lakh total for how many people? 2 people. 2 people. 12 days. And उस ट्रिप में चार कंट्रीज मैंने की थी. सो लैंडेड इन इस्तांबुल, देन वेंट टू कोपेनहेगन, देन टू आइसलैंड, वापसी में एक दिन ऑस्लो एंड देन बैक. How? या सो डिड नॉट ईट आउट इवन वंस. 1-2 बारी कॉफ़ी ली होगी, तब तक इतनी बड़ी एडिक्ट नहीं थी मैं. 1-2 बारी कॉफ़ी ली होगी बाहर से, दैट्स इट. रास्ते में सैंडविचेस वगैरह बना के जाते थे. गाड़ी जो रेंट की थी, जो भी सबसे सस्ती गाड़ी थी, वो टिकट्स पे बहुत सेव किया था, बिकॉज स्काई स्कैनर पे जाके आई पुट फ्रॉम एनीवेयर, जाना आइसलैंड है, दुबई से आइसलैंड जाना है, बहुत लेओवर वाली जो फ्लाइट्स मिली थी वो सस्ती थी, तो वो लेओवर वहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, और जगह देख ली. 1 हफ्ता आइसलैंड में थी, एंड या दैट्स इट. दिस इज अ हैक दैट वर्क्स बाय द वे फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, टू फाइंड ट्रिप्स. ऐसी जगह ढूंढो, ऐसा ट्रिप ढूंढो जिसमें कि it takes longer for you to get there, but the flight is cheaper. But you're seeing multiple places. And how cheap would be the flight then, comparatively in percentage? कि अगर आप मान लो एक extra long layover की flight ले रहे हो, एक direct flight ले रहे हो, आप कितना बचा ले जाते होगे average? Yeah, this I don't think I can answer this percentage. In a percentage point of view, is it close to like 20%, 30%? Maybe, I think so. क्योंकि उससे ज़्यादा अगर कम है तो फिर कोई सेंस नहीं बनता ना. नहीं, हाँ, एटलीस्ट 20% तो है, आई नो. क्योंकि जब मैंने की भी थी, नाउ आई डोंट डू इट, आई प्रेफर, अब ऑनेस्टली एंड आई हैव द बजट ऑल्सो, बट व्हेन आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, money has made you. भाई 2-3 साल तो जो मैंने ट्रैवल किया ना, मेरे को ही पता है कितनी गंदी टाइम की फ्लाइट्स और कितनी गंदी फ्लाइट्स मैंने लिया, मेरे को पता है, बिकॉज आई वांटेड टू सेव मनी. उतने पैसे थे ही नहीं उड़ाने के लिए. इनफैक्ट 1 or 2 ट्रिप्स 2 रात तो हम गाड़ी में सोए थे, क्योंकि पैसे ही नहीं थे. वो होटल्स इतने महंगे थे आसपास, हॉस्टल्स भी इतने महंगे थे. 120 यूरो का हॉस्टल मिल रहा था, एक बेड. सो आई एम लाइक नो भाई, गाड़ी में सोएंगे, डजेंट मैटर. तो ये सब चीज़ें मैंने की हैं टू बी एबल टू
afford trips to the Europe and finding friends who live in cities and then planning around that कि भाई तुम्हारा 1-2 दिन का स्टे का खर्चा बच सकता है. एंड ग्रोसरी शॉपिंग, बुकिंग एयरबीएनबीज इज़ द बेस्ट थिंग टू डू क्योंकि यू एंड अप सेविंग सो मच मनी. होटल्स में एक तो फील नहीं आती, लगता नहीं तुम वहाँ के लोकल हो, कुछ हो, बकवास लगता है मेरे को. एयरबीएनबी ढूंढो, एक तो मैप के हिसाब से तुम बुक कर सकते हो, दैट्स वेरी हेल्पफुल. प्लस किचन होता है, सो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ लीवे टू कुक योर ओन मील्स, सेव अ लॉट ऑफ मनी. यहाँ से भी फिर मैं कुछ लेके जाती हूँ अभी स्टिल. मसाले, उपमा बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है. I swear, उपमा. अगर आइसलैंड में मुझे उपमा खाना पड़ा ना, dude, I'm telling you, it is 1-2 दिन के बाद ना वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता है. Even if you're cooking on it, पास्ता कब तक खाओगे? सब्जियाँ इतनी कब तक, ऐसे तुम सूप बना के तुम कब तक खाओगे? एक दिन तुम्हें चाहिए होता है इंडियन खाना. स्नैक होता है एक्चुअली. प्रॉब्लम ये ना, हम यहाँ पे स्नैक की तरह खाते हैं, उनके लिए वो खाना होता है, हमसे वो नहीं हो पाता. Yeah, I know. तो उपमा तो ऐसे. Would you say no? I will not buy into this upma propaganda that you are trying to do. Listen, everyone, you have to take upma. MTR का जो ready-made उपमा होता है. My God, it is so good. भाई इतनी satisfaction जो मिलती है ना. डालते हैं ना कि views are only of the guest, not of the host. ये वो वाला है. नहीं भाई, जो ट्रैवल करता है उसको पता है. उपमा has saved my taste buds. Do you travel with Instamix उपमा और डू यू लाइक रॉ मटेरियल? नहीं, रॉ मटेरियल इतनी हिम्मत नहीं है. इंस्टेंट मिक्स MTR का जो जिसमें पानी मिला के करना होता है, इट्स अ सेवियर. ब्रांड प्लग. MTR वर्क विद मी नाउ. Only travel with MTR. No, but see, I think you actually told me the hack then कि like basically the thing that you can actually see that you can't escape from is the flight. Obviously उस पे खर्चा करना पड़ेगा, right? But everything else you can then save on. Yeah. Right, and then especially if you don't do other activities like eating out, and I think shopping is two things which probably eats up a lot of the budget, right? Yeah. वो अगर आप छोड़ दो तो शायद आपका काम बन जाएगा. Yes. शॉपिंग के लिए अगर करनी है तो थोड़ा अलग से बजट बना के करो. बजट पहले से बना के जाओ कि भाई इतने की शॉपिंग मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये जाके कर लेंगे. बट अदर देन दैट, ईटिंग आउट इज़ वेरी टर्न्स आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव. तो बस एयरबीएनबी बुक करो, खुद का खाना बनाओ. एंड देन इट ऑल्सो लीव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम टू सी अदर थिंग्स, एक्सप्लोर अदर थिंग्स. सुबह से खाना बना के जाओगे, पैक करके जाओ तो बीच में रुकना नहीं पड़ेगा. एंड एक और बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगती है, स्पेशली व्हेन यू गो टू कंट्रीज लाइक नॉर्वे, आइसलैंड, वहाँ पे देखने को इतना सब है. तुम कहीं पे भी गाड़ी रुको, अपना लंच खाओ, लाइक दैट इज सो मच बेटर देन अ रेस्टोरेंट. या दैट्स एन एक्सपीरियंस. यू डोंट रियली नीड टू. या मेक सेंस. वुड यू से दैट I know it's a very sorry, कुछ questions ऐसे होंगे जो कि थोड़े से generic होंगे, but then everybody really wants to know. Yeah. Like for example, I think you've seen the Northern Lights. Yeah. Is it as good as people imagine? Yes, it is. अभी इसी साल, so अभी I just came back from Norway and वहाँ पे ट्रॉम्सो में सिटी में विद द लाइट पोल्यूशन आई वॉज एबल, मैंने फ़ोन से वीडियो लिया है एंड फ़ोन से अगर जो फ़ोन पे आ रहा है उससे बेटर मेरे को इन रियल लाइफ दिख रहा था. It was nuts, it was mad. And in fact 2025 this year and next year is the time to actually go see the Northern Lights because solar activity बहुत high है. So if you can save money, go for that trip to see the Northern Lights. मतलब ऐसा भी होता है कि आप किसी साल चले जाओ और वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा उतना? हाँ होता है. मौसम अगर ख़राब हो, क्लाउड कवर हो, तो कोई चांस नहीं तुम्हें दिखेगा. And how do you, is there a way to predict या मतलब? नहीं, not really, just maybe नहीं एक्चुअली अगर तुम 1-2 महीना एडवांस में, अरे सी सो इसके जनरल हैक्स हैं कि फरवरी एंड जाओगे तो मौसम तब क्लियर हो रहा होता है, अक्टूबर एंड जाओगे तो तब क्लियर होता है, मौसम खराब होना स्टार्ट नहीं होता. नवंबर दिसंबर इज़ व्हेन स्नो पड़ती है तो क्लाउड कवर ज़्यादा होने के चांसेस है. सो जस्ट इज रफ. मैडम ये हैक आपको पता है, मुझे नॉर्वे के मौसम के बारे में कुछ नहीं पता था, ना जनता को पता है. ये तो नॉर्मल विंटर का मौसम है, पहाड़ों पे जाते तो थोड़ा बहुत तो पता होता ना कि चल अगर नवंबर दिसंबर बारिश होगी तो मे बी क्लाउड कवर होगा. ये वो होता है यदि when you learn from like a very accomplished teacher, the problem is that the teacher assumes that the basics are known to the kids. जैसे IT का टीचर थर्ड क्लास में जब पढ़ाने जाएगा तो ये बोले भाई इनको तो आना चाहिए, ये भी नहीं आता तुम लोगों को. मम्मी अगर देख रहे हो आज मेरे को IIT के प्रोफेसर से कंपेयर किया गया है. आई हैव मेड इट इन लाइफ ऑफिशियली. नॉर्वे का मौसम मुझे क्यों पता होगा, बट नो दिस इज इम्पोर्टेंट. You think it is worth? Because 100% मतलब आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ. या वो ऐसे स्काई में तुम्हें लाइट्स दिख रही हैं, नाच रही हैं, वो डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, सब दिख रहा है. इट्स वेरी हम्बलिंग टू सी नेचर एक्चुअली आउट देयर एंड स्पेशली इन अ प्लेस लाइक सी यू विल गो टू एनीवेयर अबव द आर्कटिक सर्कल, तुम्हें लाइट्स दिखती हैं ना. तो स्पेशली इन कंट्रीज लाइक नॉर्वे और फिनलैंड
मतलब it's so cool to see that life exists and then stuff like that just happens and we just exist. It makes you feel like you're a part of such a big picture and तुम्हारी normal day की जो normal gossip, normal फालतू tension वगैरह doesn't matter. It's so humbling. I love it. It's how much would it how cheaply can I see the Northern Lights? 2 to 3 lakhs. 2 to 3 lakhs per person? No, total. For a 5-day trip. For a 5-day trip you can make it happen. 2 people? Yes, including tickets. Including tickets, right? Yes. ठीक है. To Finland, हाँ. Norway भी कर सकते हो. Yeah. I think this is a lot of people actually want to know this only. Like कितना लगेगा? Yeah. Right. 2 Because to 3 lakhs. imagine yourself when you were working and you were only living paycheck to paycheck. That is what the almost 99% of people plan like this only. Yeah. And also, I think unless in your case, like I think things have changed because now it is also for you it is productive to go as well because you make money from traveling. Yeah. But for everyone else, it's a depreciating asset other than the experience. I'm sure Yeah. you will say, yes, उसका experience is worth it. Right. Depreciating asset तभी भी नहीं है भाई. भाई मुझे पता है travelers obviously find some peace in the factor. I am yet अब to मेरा मिशन हो चुका है. मैं तुम्हें अगले साल के लिए कन्विंस करूंगी कि नॉर्वे या फिनलैंड की ट्रिप बुक करो और तुम नॉर्दर्न लाइट जाके देखो. वापस आओगे 100% बोलोगे या आई माइट जस्ट बी आई एम गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइकिंग ट्रैवल. आई एम नाउ कल्ट चल रहा है, नीचे ले जा रहे हैं. आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ दैट कल्ट. This is the only mission that you will. This is the only objective that you will not meet. There are so many things that you will accomplish with. I'm sure. This is one thing. It is. I'm taking this as a challenge. अभी तुम देखो. No. I want to. I will actually try. I'm also talking to people now. Yeah. Like, मुझे बताओ उसके बारे में ताकि I think also I'll tell you what there's a category of people who are also like I know that I'm an anxious traveler. Okay. Right. Even I am. Okay, then good because I have a lot of questions about it. कि anxious traveler के साथ problem ये होती है. My sister is also an anxious traveler and I was talking to her and she was saying कि I want to see the Northern Lights, but her questions are always कि like for anyone who does not travel much, मैं अगर वहाँ चला गया मेरा passport हो गया तो क्या होगा? What if there's an issue? Right? Have you ever experienced any of these problems like with Touchwood, I have not. immigration वगैरह के साथ? नहीं, touchwood I haven't. But see the thing is एज इंडियंस आई थिंक हमारा पासपोर्ट क्योंकि जनरली वीक है. अभी भी मैं इमिग्रेशन की लाइन में खड़ी होती हूँ, मेरे को लगता है ये मेरे को वापस भेज दे तो, ये मेरे को डिपोर्ट कर दे तो, वीज़ा मेरा कैंसिल हो जाए तो. हर बारी वीज़ा अप्लाई होता है, ओ शिट रिजेक्ट हो गया तो, कि अभी नहीं फिर से अप्लाई करना पड़ेगा और फिर वो देखेंगे कि ऑल द टाइम इट हैपन्स विद मी. फ्लाइट में मैं जा रही हूँ, ओ शिट पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट तो नहीं खो दिया मैंने. बट सी इंडियन एम्बेसी इज़ रीचेबल एवरीवेयर यू आर इन द वर्ल्ड. सो फ्यू थिंग्स. एक तो एमरजेंसी फंड, थोड़े पैसे रखो, कैश रखो अपने पास कि जस्ट इन केस वॉलेट खो जाए, फ़ोन खो जाए, पासपोर्ट खो जाए, यू शुड हैव सम मनी एट योर डिस्पोजल. ये नहीं कि भाई तुम यू जस्ट लेफ्ट स्टैंडर्ड देयर बिकॉज देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. जो अपने क्लोज दोस्त हैं, दोस्त वगैरह का उनका नंबर याद रखो. आई थिंक दैट्स रियली हेल्पफुल. हैव ट्रैवल इंश्योरेंस. It's a very minimal amount when you have to buy travel insurance from here. ICICI का बहुत अच्छा आता है. Keep that. Plug in. No, I'm not working with any of these brands by the way. Plugs have come naturally to us. मैं ICICI का खरीदती हूँ और एक दो और है जिनके मैंने खरीदे हुए. But travel insurance is also in case you lose your luggage or your flight gets cancelled or something. It works. Travel insurance काम करता है. हाँ करता है. I've never had to use it till now. Touchwood again. But हाँ, it does help. When you see the list of things that will be covered in your insurance, it gives you a certain क्या cover level करता है of travel insurance by the way? Your baggage luggage, loss, हाँ. flight delay, flight cancellations. If you in case you get hurt, your level some I think amount वो of सबसे बड़ी एंजाइटी कि अगर आप वहाँ जाके बीमार पड़ जाओ तब क्या करोगे आप? Because medical and also expenses. बीमार पड़ने के लिए यहाँ से दवाइयाँ लेके जाओ because off the counter वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है. हाँ of course, but just a general hack also. So I carry my because वहाँ पे prescription लेने में तो दिमाग खराब हो जाएगा. नहीं वो नहीं मिलती. So it doesn't work. वहाँ पे especially in Europe it doesn't work. वो हमारी तरह नहीं है कि ऐसे दुकान पे जाओ और भाई साहब मुझे ये दवा चाहिए थी. नहीं है. It's a big procedure. मैं in fact my sister lives in Germany now. She's doing her PhD. तो उसके लिए भी यहाँ से मैं दवाइयाँ लेके जाती हूँ. So carry your basic medicines. पेट खराब के, जुखाम का, allergies, whatever that you might think you need. So इसका एक अलग से पाउच बना के रखो. ट्रैवल कर रहे हो साथ में ले जाओ. bandages, whatever, general things. And हम क्या बात कर रहे थे? I'm going on losing. I think I need coffee. But anyway, the plugs come naturally to her. I'm so proud of this. The best brand plug person I've ever seen in my life.
Please bring the. ये usually मैं ऐसी होती नहीं हूँ by the way. नहीं, this is you. I've realized this is. Anxious traveling, हाँ. And हाँ तो keep your like जैसे passport है, मुझे wallet. मिल जाएंगे क्या? Passport, हाँ, passport, your wallet and everything keep in a secured place where you know. और ऐसे भी बचा के मत रखो कि तुम खुद ही भूल जाओ कहाँ रखा हुआ है. This has also happened. उसको सिक्योर जगह रखो. कैरी, आई थिंक स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इटली नाउ, इटली एंड फ्रांस, यू सी थेफ्ट बहुत हो रहा है. कैरी बैग्स दैट आर एंड कैरी देम इन द फ्रंट. सो दीज छोटी छोटी थिंग्स टू जस्ट यू नो गिव योर सेल्फ अश्योरेंस कि कुछ हो भी जाए, डजेंट मैटर. एंड ऑल्सो इन केस यू लूज योर पासपोर्ट, यू गेट इन टच विद द इंडियन एम्बेसी. दे आर अवेलेबल everywhere, and तुम्हें फिर वो आई थिंक इमरजेंसी पासपोर्ट देते हैं, then you can fly back and then apply for another passport. So that's also in case हो जाए. I know it's very problematic and मेरे को सोच के अभी actually anxiety हो रही है. I think the worst thing that can happen is you losing your passport in another country. Yeah. Yes. Yeah. I can understand. I think वही सबकी anxiety भी यही होती है. Yeah. So when you travel, do you leave your passport behind at the hotel? Yes, I do. I don't like to carry my passport everywhere. क्योंकि फिर भाई मेरे what if I'm करना भी नहीं चाहिए. हाँ तो securely उसको रखो तो नहीं खोएगा ना. And even if for example God forbid तुम बाहर हो, तुम्हारा बैग चोरी हो जाता है, उसमें तुम पासपोर्ट लेके घूम रहे हो, तो फिर तो तुम गए. क्या करोगे फिर? पासपोर्ट पीछे छोड़ो, पासपोर्ट और इमरजेंसी थोड़ा सा कैश पीछे छोड़ो. एंड देन दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट. कैश से मेरे को याद आया, एक अच्छा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो दैट कि मतलब कुछ हो जाए तो चल क्रेडिट कार्ड है मेरे पास. Very nice. एंड या थैंक यू. The credit card thing? या क्रेडिट कार्ड अच्छा रखो जिसमें लिमिट हो कि भाई कुछ हो जाए तो फिर. कौन सा क्रेडिट कार्ड काम करता है सारे कंट्रीज में? आई एम यूजिंग एन Amex. डोंट गेट द Amex. अमेरिकन एक्सप्रेस आधी से ज़्यादा जगह काम नहीं करता. बट आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर बेटर क्रेडिट कार्ड नाउ, बिकॉज इससे पहले तो दुबई वाले मेरे पास कार्ड्स थे, वो हर जगह चलते थे. बट आई थिंक वीज़ा वर्क्स एवरीवेयर. एंड आई एम ऑल्सो, आई विल नो दिस ऑन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, कौन सा कार्ड अच्छा है कौन सा नहीं है. अच्छा, you're checking things out? I'm checking things out अभी. हाँ, because this is also a very big question that people ask कि digital payments के point of view से, because you obviously cannot take that much cash. How do you pay? Like your cards work? Bank transfer? What? Bank transfer नहीं, cards या credit cards are I think very underrated in a country. क्रेडिट से डर लगता है लोग को, नहीं लगना चाहिए. एज लॉन्ग एज यू पे एवरीथिंग ऑन टाइम, इट्स ऑल गुड. एंड देन यू शुड नो तुम्हारी लिमिट भी क्या है ना. आई थिंक क्रेडिट कार्ड्स आर द वे टू गो, बिकॉज तुम सारे एक्सपेंडिचर्स उस पर करो, दैन यू एक्चुअली गेट बेनिफिट्स, यू कलेक्ट पॉइंट्स, यू कैन यूज़ दोज पॉइंट्स. आई नो उसके लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, बट इवेंचुअली यू विल गेट बेनिफिट्स फ्रॉम इट. आई डोंट लाइक टू स्पेंड, आई कीप कैश विद मी, बट आई डोंट लाइक टू स्पेंड कैश, क्योंकि एक्सचेंज रेट अलग होता है यहाँ से, फिर वो टेंशन अलग होती है कैश की. आई डोंट लाइक इट, सो आई यूजुअली ओनली यूज़ कार्ड्स व्हेन आई एम ट्रैवलिंग. And they work, like give me an example, like Finland में what Indian card is working for you? Usually सारे all cards work. They all Even work? American Express, Finland में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. नॉर्वे में in like some small little town मेरे को प्रॉब्लम हुई थी. So basically if I have a credit card, अगर मैं उसका international transaction activate करा दूँ, it works everywhere. And is there a Visa Mastercard works. कोई conversion rate वगैरह? Conversion होती है, usually होती है. जैसे I know Amex पे I might be wrong, हटा देना इसको, maybe 2.5 है या कुछ है. And they charge me on every transaction. But there's a lot of forex cards also. I know Scapia है. There's Neo Global also, I think. Very good brand. Just did an ad for them. Oh really? Okay. So imagine them doing an ad with me. I also feel bad. मेरे से क्यों? मैं तो कहीं गया भी नहीं. So these two I know companies have good cards and they give you a lot of benefits when you spend on their cards also. And forex, zero forex marka वाले बहुत cards होते हैं that you can apply for and actually use them when you're traveling. Credit cards रखो, cash ज़्यादा मत carry करो, emergency के लिए रखो बस. Debit cards don't work. Debit cards also work, but debit card पे तुम्हें फ़ायदा नहीं हो रहा. Like why would you spend and then not get points? Like you're not getting any benefit. I think this is a game जो कि इंडिया में बहुत कम लोग खेल रहे हैं. The credit cards point game, but the ones who are playing it, they tell me insane stories of like having इतना points इकट्ठा कर लिया है that now suddenly a flight is free. Upgrades are there. I think कुछ नहीं तो कम से कम the upgrades in the lounges are worth it. Yeah, I agree. And then because in a country that you don't know, I think the airport also feels like the most secure place. Right? अगर कुछ करने के लिए नहीं तो एयरपोर्ट ही चले जाओ, पहले चले जाओ. और एक बार आप अंदर घुस जाओ तो ऐसा लगता है कि अब मैं पहुंच ही गया. you're safe. हाँ, तो पहुंच ही जाऊंगा घर. कुछ तो हो ही जाएगा. अब यहाँ से तो मुझे भेज ही देंगे, रिपोर्ट करके भेज. आई थिंक सी आई टेल यू व्हाट, एंग्शियस ट्रैवलर्स के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि द रीजन व्हाई वी डोंट ट्रैवल दैट मच इज बिकॉज देयर इज सो मच फियर अराउंड द ट्रैवल थिंग. यार वो देखो, फेस योर फियर्स, डर के आगे जीत है. ठीक है.
another brand plug-in है, पर ये मैं constantly बहुत बोलती हूँ. हाँ, yeah, you have to face your fears. धीरे धीरे one trip after another will get better. It has to get better. It will get better. You do get used to it. I still get anxious a lot of times कि हमेशा मैं चेक कर रही हूँ passport है ना, passport है ना, passport है. The biggest scare that you had while traveling? कोविड के टाइम पे आई वाज इन रशिया, मेरे को कोविड हो गया था. उस टाइम पे ट्रैवल कर रहे थे? उस टाइम पे ट्रैवल करी थी बिकॉज दुबई में लॉकडाउन नहीं था. 2021 वेयर इंडिया में लॉकडाउन था, दुबई में नहीं था. वी वर फ्री टू ट्रैवल एंड उस टाइम मतलब ये नहीं कि ट्रैवल करना था, उसका मतलब ये था कि बस आपको अपने घर पे रहना था. Whatever. The government does not need to intervene to stop you. We were free to travel ना. उस टाइम वहाँ से नहीं थी इतनी प्रॉब्लम्स. मुझे क्या पता था रशिया में और प्रॉब्लम थी. So रशिया at that time, I don't know if anything has changed. Russia was more lawless than India. अब ये बोलना पता नहीं, I don't know, you see later. This is fine. This is your experience. It could be different for other people. And मैंने वहाँ जाके देखा कि ओ शिट, यहाँ पे डेली कोविड केसेस तो इंडिया से ज़्यादा हैं, पर वहाँ पे एक इंसान ने मास्क नहीं पहना हुआ था. नो वंडर मेरे को कोविड हो गया था. बट that was actually a very big scare for me. You got COVID in Russia. फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे को वापस आके पता चला ओ शिट मेरे को कोविड हो गया था. अच्छा, thankfully you did not have like a... हाँ, नहीं वहाँ पे कुछ पूछा ही नहीं था, किसी ने कुछ किया ही नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं. एंड देन वापस मैं जब आई, देन आई मतलब वो एयरपोर्ट पे टेस्ट हुआ था, तब दे सेड कि ओ यू हैव कोविड. देन आई वाज क्वारंटीन एट होम. ऐसा कुछ बड़ा डील नहीं था. बट तब वहाँ पे मेरे को टुवर्ड्स द एंड मेरे को थोड़े सिम्टम्स होने लगे थे. ना ओ शिट, आई डोंट वांट टू बी स्टक इन अ कंट्री वेयर nobody understands the language. इंग्लिश भी ज़्यादा लोग नहीं बोलते. एंड आई एम लाइक दिस वाज वेरी स्कैरी. मेरे आंसू आ रहे थे मेरे को एयरपोर्ट पे. बट या When you what क्या हुआ? मेरे दिमाग में पता क्या है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो होती है ना, वो आपके लिए बनी हुई है. आप जैसे लोगों के लिए बनी हुई है कि जो नहीं, वो जो इंसान फंस जाता है जिसको निकालना होता है. मैं कभी जानता नहीं था कि वो इंसान कौन होता है. अब मुझे समझ में आया कि वो कौन है जिसको इवैक्यूएट कराना पड़ता है. या मैं तो फिर भी आई नो people my friends, especially Radhika, Sharanya and all these, sorry, I'm going to say this again. Name drops. Yeah, I have a lot of friends who travel, who do It's extreme. a flex, by the way. She has a lot of friends because I don't. Extreme travel. You have friends who travel, which is a big flex, by the way. Because we are now in the same industry and I love these girls, Radhika and Sharanya. They're right now, I think they're going to, or they've already reached in Turkmenistan. These are, they go to places, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उनके लिए बना है. मैं तो फिर भी नॉर्वे, फिनलैंड, ये तो चल नॉर्मल कंट्रीज है, तो कर सकते हो तुम. Hey guys, now in North Korea, it's chill here. नॉर्थ कोरिया जाना मेरे को. साउथ मैं सोच रही साउथ जाऊंगी तो हो ही आऊंगी ऊपर. सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझे नहीं कन्विंस करना है, मुझे तुम्हें कन्विंस करना है कि हर जगह जाना जरूरी नहीं. I will not convince you to go to North Korea, don't worry. I am just convincing you to go see the Northern Lights. That's step number 1. उसके बाद हम आएंगे, चलो तुम्हें कन्विंस करूंगी लद्दाख के लिए, स्पीति के लिए. वो लगेगा मेरे को टाइम, आई थिंक. Yeah. We will try and reach an equilibrium where you don't go to these places. I will go to the safe places. You don't go to these places. मैं हमेशा सोचता था, वो जो ट्रैवल एडवाइजरी होती है ना, जैसे when a country advises that you should not travel to North Korea, मैं हमेशा सोचता था कि इसको बोलने क्या जरूरत है, तो समझ में आ जाता होगा कि नहीं जाना है. नहीं आता बट बोलना पड़ता है. Why? अच्छा एक बात बताना. I understand it's obviously for the experience. What is different in your brain as compared to, let's say, brain of other people? चुल मची हुई है चीज़ें देखने की, या वो उस पहाड़ के उधर क्या है, क्यों इधर वो ऐसे हो रहा है, या फिर समुंदर के नीचे उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या है, मुझे जाके देखना है. चुल है, बस चुल मची रहती है. अब दिल्ली में मेरे से बैठा नहीं जाता घर पे. मेरे को हे भगवान, आई मेट द एग्जैक्ट ऑपोजिट कैटेगरी ऑफ पीपल. आई हैव नाउ मेट रियलाइज. आई लाइक दिस पॉडकास्ट. हां, बिकॉज़ बेसिकली आई वुड अज्यूम पीपल लाइक मी, हमारा लॉजिक होता है कि क्यों जाएं पहाड़ के पीछे, क्यों देखने जाएं. हम जब वो स्टूडियो वाली बात कर रहे थे तो हम इतना इनके पीछे लगे होते कि अगले दिन का कर दो, क्योंकि नए स्टूडियो में जाएंगे, पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, है ना, पता नहीं कैसा होगा. आर गोल इज कि जो चीज़ जानते हैं वही करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी परेशानी आ ही जाती है, तो जो नहीं जानते वो क्यों करे. चुल बस यही फसाद की जड़ है, चुल. बस मम्मी भी मेरे से अभी तक क्या पड़ी है तेरे को. अभी मैं आज आई एम लीविंग फॉर मनाली टुनाइट बाय द वे. अभी पापा मेरे को फिर बोलेंगे क्या ज़रूरत है, क्यों जाना है, बैठी रहे घर पे. अभी कल आई हूँ मैं ट्रिप से और आज मैं रात को निकल रही हूँ. पूछेंगे हर बारी का कॉन्वर्सेशन है, तो बस चुल मची है. बस मेरे पास भी आंसर, अब आई डोंट हैव आंसर्स कि क्यों जाना है मुझे. बट द थिंग दैट आई थिंक मेरे जैसे लोगों को ट्रैवल इसलिए कर लेना चाहिए बिकॉज जो लोग बिल्कुल ट्रैवल नहीं करते, विच इंक्लूड्स ऑब्वियसली पेरेंट जनरेशन में भी बहुत कम ट्रैवल है बाय द वे, है ना. और फिर मेरे जैसे लोग जो कि
मतलब अपने एज से ज़्यादा बुढ़ा गए हैं पहले ही, फिर उसके बाद यंग लोग भी, देयर आर पीपल आई अज्यूम जिनको यही वाली पर्सनैलिटी टाइप होती होगी, बट आई थिंक वी डोंट हैव, we are not as open minded as people who travel. This is one thing that I think you become open minded when you travel, and that is necessary. I think travel does things for you that I cannot put on paper. मैं बता नहीं सकती तुम्हें क्या करेगा. Obviously it makes you more aware, it makes you generally more street smart, I would say, or it makes you smarter in life, not like on paper, but travel does so much more for you and to you कि तुम predict नहीं कर सकते, और तुम्हें ट्रिप से तुम वापस भी आओगे तभी तुम्हें समझ नहीं आएगा हुआ क्या, बट विद टाइम देन यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन, यू बिकम आई नो, तुम्हें दुनियादारी दिखती है यार. तुम जाके देखो, घर के बाहर जाते ही तुम्हें, यहाँ से गुड़गांव जाओगे तुम्हें कितना कुछ समझ आ जाता है, राइट. एंड देन यू ऑल्सो गेट टू नो, नहीं जाना चाहिए था, जाते ही लग जाता है. आई मीन यस ऑफ कोर्स, बट आई डोंट नो, इट ओपन्स योर माइंड टू अ लेवल आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड कैन. मुझे अकेला जो वो दिखता है, वैल्यू दिखती है ट्रैवल की, वो ये है, वो जो द स्टोरीज दैट यू गेट टू टेल, बिकॉज इफ यू डोंट ट्रैवल देन यू आर ऑल्सो अ पर्सन हु डज नॉट हैव दैट मेनी स्टोरीज सैडली, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतनी चीज़ें होती नहीं है कि अगर आपको कोई आदमी रैंडमली मिल जाए तो आप उसको कहानी बता पाओ, बट इफ़ यू ट्रैवल देन यू हैव अ स्टोरी टू टेल. जैसे ही आप बैठते हो अपने दोस्तों के साथ उनको ही बताने के लिए और किसी दूसरे इंसान से मिलते हो, आई थिंक दैट इज़ द ओनली allure that I see. That is of course one, and also I think मेरे को अब recent, I think this year I've developed this I don't know, I've understood this thing that happens. So बचपन से हम बुक्स पढ़ते हैं ना about science, about our planet. हमें हमारा कितना लाइफ स्पैन है, 70 to 80 years. दिल्ली में रहते हो तो थोड़ा सा और कम. तो जितना तुम्हारा टाइम है इस planet पे, then you don't exist after that, right? You live on this planet and imagine not seeing it. And then just like not existing after that, or it's a different experience when you read something in books and you go experience that. Northern Lights is of course one, and abhi recently I was in Norway in the summer, तो वो Arctic Circle के ऊपर है जगह, तो वहाँ पे रात नहीं होती. So we've read this in books, in science classes, when we were in school, कि 6 months daylight, 6 months darkness. But seeing the sun, रात के 1 बज रहा है और sunset नहीं हो रहा है, it's a very moving, like I get goosebumps just talking about it. It sounds like it's nothing, but it's such a moving experience. So वही ना, it grounds you, like it makes you feel like you're a part, you get another appreciation for your planet, कि तुम भाई कितने छोटे से तुम पार्ट हो इतनी बड़ी पिक्चर का, and it makes you appreciate maybe other things, makes you concentrate on different things in life, कि कुछ चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो. So I think it's these things, going out and exploring these things is just, it's a different experience. It's amazing. What, for a person like you who's a pro traveler, what are the लग रहा है एक नई कैटेगरी ऑफ नई जात पैदा हो गई, pro traveler. I like it. वॉट आर द नेगेटिव्स ऑफ ट्रैवलिंग देन? क्योंकि देखो, मेरे से पूछोगे तो मुझे तो हर चीज़ गलती दिखेगी उसमें, बट जो करता है उसके पास शायद जेन्युइनली वो नेगेटिव्स उसे दिखाई देंगे. नॉट नेगेटिव्स ऑफ ट्रैवलिंग, बट द प्रॉब्लम्स दैट यू कैन हैव बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग. आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा तो है डोपामिन क्रैश होता है मेरे को वापस आके. Like it's बहुत, like I have a few days where it takes me, it's almost as if I'm depressed. अब मैं क्या क्या देख के आ रही हूँ, वापस आके दिल्ली में पोल्यूशन में घर पे बैठी हूँ, मम्मी मेड्स पे चीख रही है, मेरे को काम करने के लिए बोल रही कुछ. इट्स सच अ बिग शिफ्ट व्हेन यू कम बैक. दैट्स वन प्रॉब्लम आई जेन्युइनली फेस. और फिर एक हफ्ते बाद मेरे को फिर चुल मच जाती है कि निकलना है. आई थिंक देन यू कीप चेजिंग फॉर a change. Maybe this is like a drawback, but apart from this I don't think there are any drawbacks. When I was working GSK में मैं काम करती थी, so I used to look for it. I actually missed that part of my life, क्योंकि मेरे को those were vacations essentially. Those were not work trips. So I used to take a vacation, laptop छोड़ के मैं जाती थी, then I used to come back, I used to get back to work. Routine होता था, routine में तुम वापस आ रही हो, used to be nice, and then I used to look forward to the next time I'm traveling or the next vacation I'm going to take. So I mean this drawback is not necessarily a drawback also, but dopamine crash मेरे साथ होता है. I don't know बाकी किसी को होता है कि नहीं. Have you done one of those things which I think a lot of people want to do, which is that they travel to somewhere and then they work from there, work from, I've done that, yeah. Work on vacation वाला thing. Yeah. Is there a place that you would suggest in India where people can do, which is reasonable? कहीं पे भी पहाड़ों पे जाओ. Beer is such a nice place to go, because you find a lot of like cheap accommodations also. Where?
बीर, Oh yes. जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है. हाँ. Yeah, and Beer is such a pretty place. बहुत सुंदर है. I do not advise the paragliding thing again, but yeah. Why? Paraglide मैंने एक दो लोगों को गिरते हुए देख लिया है. अरे वो एक्सीडेंट हर चीज में होते हैं. ऐसे यार. रोड क्रॉस करोगे तुम्हारे पे गाड़ी चढ़ जाएगी. ऐसे थोड़ी तुम बंजी करोगे नहीं. जंपिंग में किसी को यार सीधे गिरते हुए देखा यार. That person fell flat on a That was scary. That was किसी के छत पे. That was very scary. Yes. Yeah. बंजी जंपिंग मैं नहीं करूंगी. मैं स्काई डाइविंग 4 बार किया, बट बंजी जंपिंग आई एम सॉरी इंडिया में द देखो प्रॉब्लम यार, इज रिस्क हर चीज में है. नहीं सुनो मेरी बात यू सुनो. चूज योर रिस्क. किस चीज में तुम्हें रिस्क लेना है? मेरी बात सुनो यार, एक मिनट रुको. एक तो आदमी इतना हिम्मत करके कहीं गया, फिर उसके बाद वहाँ और रिस्क ले ले. नहीं, बट आई थिंक सो दिस इज माई लॉजिक. आई थिंक इंडिया इज एन एक्सीलेंट कंट्री बिकॉज ऑफ सम थिंग्स एंड दैट वही चीज़ें फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी पैदा करते हैं. जैसे कि हमारे देश में कंप्लायंस के लिए जो वैल्यू है ओवरऑल लाइफ में वो बहुत कम है. कंप्लायंसेस के लिए हम लोग कंप्लायंसेस को उतनी वैल्यू नहीं देते. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सबको बहुत जल्दी रहती है और हर आदमी अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है. तो समझ में भी आता है कि क्यों हम we like to jump steps. This is the thing about India, right? If somebody can jump you to the front of the line, I think Indians are the most excited people about it. We love that. ठीक, हम हर जगह लेट पहुँचते हैं. मैं लेट पहुँचा हूँ, लेकिन अगर हम वहाँ पे समय बचा सके तो हम बचा लेंगे. एंड सो मुझे क्या डर लगता है ना, ये इंडिया की प्रॉब्लम है कि अगर कोई एसओपी फॉलो होनी है बेस जंपिंग में, बंजी जंपिंग में, सेफ्टी टेस्ट की, मुझे नहीं लगता है कि जो बहुत अच्छे सेटअप्स हैं उसमें तो हो रहा है फॉलो, बट जो थोड़े लोकल सेटअप्स हैं उसमें कुछ कटिंग कॉर्नर्स वाली कैटेगरी में आ सकता है. Are you considering to do some adventure? No. Do you think anything about me says ऐसा किसी को देख के कभी लगेगा? नहीं, see then I'll be frank, then you choose if you want What to do an What activity. is the safest adventure? What is the safest adventure for a person like मतलब जिसमें risk obviously is, you think risk is minimized. Because see, I am not going to jump out of a plane. कम से कम बंजी में रस्सा तो चिपका है मेरे से, कुछ तो है मेरे पास. That's worse. At least तुम्हें पता है कि पैराशूट अभी खुल जाएगा, तुम किसी के साथ कूद रहे हो. You are not responsible. Actually, even in bungee you're not. But still, bungee jumping में तुम उल्टा कूद रहे हो. हाँ, that makes me very uncomfortable. Bungee मैं नहीं करूँगी. Actually, I'm very adventurous, but bungee is one thing I don't want to do. I don't like I hate the part where they sort of also, they obviously it's a bit and they try to relax anxiety, but I hate the part where they like लटका रखा होता है और पूछ रहे हैं कि आप, मुझे वीडियो रील देख के मेरे को एंजाइटी होती है. वही भाई मेरे को जान दे यार, छोड़ देना फिर मेरे को. ये क्यों कर रहा है? Safest adventure then I would say trekking. Yes. Yeah. हाँ. Yeah. That makes sense. Love treks. And if you want to be even safer, go to Nepal. वहाँ पे ट्रैकिंग में तुम चल रहे हो, तुम और कुछ नहीं कर रहे. Okay. ना तुम कैंप करोगे, टी हाउसेस में तुम रहोगे, खाना तुम्हें मिलेगा मस्त, बेस कैंप पे जाके भी तुम्हें वाईफाई मिलेगा. अच्छा. Nepal is nuts. They have mastered trekking and they've made it available to everyone. If you go to Everest Base Camp, you'll see all ages of people. You'll see 4-5 साल का बच्चा भी ट्रैक कर रहा है. 80-year-olds are also trekking. अभी I went last trek पे मैं गई थी was to Annapurna Base Camp in Nepal and वहाँ पे there was a group of doctors from India that were trekking to the base camp. और मुझे देख के इतना अच्छा लगा था ना. I'm like yes, you are the future. Inspire more people to, because again वो भी बहुत humbling experience है. But Nepal में trekking is a cakewalk. It is just amazing. And then the views you get, my God, उस अन्नपूर्णा के सामने खड़ी थी and I was amazed. मैंने देखा ये पहाड़ 3 में से एक क्लाइंबर का लाइफ लेता है. It's the most difficult mountain to climb and I'm standing in front of it. It's like it's nuts. It's yeah, I'm sure. I आपसे बात करके मुझे ये बात रियलाइज हो रही है कि जितनी भी चीज़ें आप इंटरनेट पे देखते हो या जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है उसको रियल लाइफ में देखना है. जितना हम मेमोराइज करते हैं कि कौन सा हाईएस्ट माउंटेन है, K2, and we talk about MT, we never see. Yeah. I think it's a. But by the way, there have been other people on the podcast who specifically said good things about this particular trekking thing. Tell me one thing, is the when you say नेपाल में trekking is streamlined, do you think इसका मतलब ये है कि जो individual camping वाला part है वो नहीं करना पड़ता? नहीं करना पड़ता. So if you go on very popular treks, ABC, EBC, वहाँ पे हर अन्नपूर्णा बेस कैंप एंड एवरेस्ट बेस कैंप. अच्छा. तो ये दोनों ट्रैक्स काफ़ी पॉपुलर हैं. तो तुम्हें हर जगह, हर रेस्ट स्टॉप पे तुम्हें टी हाउसेस मिलेंगे. you'll have a bed, you'll have a bathroom. हाँ वही. Yeah. Like मेरे को अन्नपूर्णा बेस कैंप मेरे को इतना अच्छा लग गया था. Yeah. So you start Where with will Nepal. I poop? This is my anxiety. Yeah. So you start with Nepal and then if you feel मेरे को
थोड़ा और एडवेंचर करना है, यू कम बैक टू इंडिया, यू डू द ट्रैक्स हियर. We had one stand-up comedian Piyush, and he said the biggest problem for him traveling was the fact that the pit poop situation where there's just a pit and you have to poop there. He said I stopped it for like I tried to not go for 2 days, and then he said there was no option. यार उसकी भी आदत लग जाती है, पता है. Like I have used such, माय गॉड, मेरे को तो सोच के, एक बाथरूम था स्पीति में जो मैंने बीच में यूज़ किया था, वो माय गॉड, मतलब वो बिल्कुल ही क्या था वो. बट इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर ना. व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. ये सोचो ना, मुझे ये मजबूती नहीं चाहिए. अच्छा, एनीवे, मजबूती नहीं चाहिए, नेपाल जाओ, ट्रैक करो. हाँ, नेपाल वाला, दिस आई लाइक. दिस इज द थिंग दैट यू सेड व्हिच अभी तक, जिसमें से मुझे ऐसा लगा है कि हाँ, यहाँ पे मेरी कुछ परेशानी सॉल्व हुई है. ये कुछ रीजन नहीं, बिकॉज so many friends of mine have said the same thing कि ट्रैक करना है, लेकिन मेरे को बस वॉशरूम की एंजाइटी है. सो जाऊंगा मैं कहीं पे भी, लेकिन यार आई कांट poop in a ditch. Okay. Yeah, Nepal is for you, for sure. And how much does it cost? Not as much as you think. ये वेग आंसर्स के लिए नहीं बोला आप दे रहा. मैं सोच ही, रुको, मेरे को याद करने दो कितना. ट्रैकिंग के सोच के, नेपाल इज स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन यू वुड थिंक. अमीरी इंसान को ना, जब वो अपना देखना बंद कर देता है कि मेरा खर्चा कितना हुआ है. देखो, ये दिस इज वेयर आई वांटेड टू गेट इन लाइफ, कि मैं ट्रिप्स पे जाऊँ, मुझे ध्यान ही ना हो मैंने कितना पैसा खर्च किया. आई मीन, या एक्सीलेंट प्लेस टू बी. पैकेजेस होते हैं, आई थिंक यू कैन. यार पर डे का क्या कॉस्ट है यार, याद होने लग गई मुझे यार, मैंने क्या सवाल पूछ लिया, ध्यान ही नहीं है. लेट मी कम बैक टू इट, मेरे को याद करने दो थोड़ा. नो खर्चा होता है. वी कैन बट आई थिंक एनीथिंग अप टू, आई थिंक, a lakh, because these treks also take about a week to complete. EBC will take you going and coming back 10 to 12 days. 10 to 12 days. हाँ, and you can do it in under a lakh, including tickets and transport and everything, खाना वाना सब. So I think that's good. Per person? Yeah, you're still talking about 2 people? 2 people. 2 people. Yeah. Then this is reasonable. Yeah. 50,000 per person for an experience like this. Yeah. And no pooping in a ditch. Yeah. I see the allure. Maybe base camp, Everest base camp पे करना होगा, अन्नपूर्णा बेस कैंप पे नहीं करना होता. तो वहीं जाना है भाई, सब लोग वहीं चल रहे हैं. अन्नपूर्णा बेस कैंप is slightly easier also, क्योंकि maximum altitude you reach is 4100 meters, which is very much easier than dealing with 5,000 meters in EBC. बट हाँ, अन्नपूर्णा बेस कैंप बहुत अच्छा ट्रैक था. मतलब वहाँ पे एक स्टॉप था, 2900 मीटर्स था उसका, हिमालय करके छोटा सा विलेज था. वहाँ पे वेरी कंफर्टेबल बेड, बाथरूम, सब एकदम मस्त. कॉफ़ी कैपुचिनो पिया मैंने वहाँ पे. 3 दिन ट्रैक करके मैं एक स्टॉप पे हूँ जहाँ पे मेरे को बेड मिल रहा है, क्रेजी पहाड़ दिख रहे हैं, और मैं कैपुचिनो पी रही हूँ. मैंने उनसे पूछा, मैं कहा सर ये मशीन थी उनके पास प्रॉपर. मैं कहा ये कहाँ से लाए मशीन? ये से ढो के लाए नीचे से. नेपालीज आर नट्स, लाइक दे, मतलब कैरामल कैपुचिनो पिया मैंने 2900 मीटर्स पे ट्रैक करके. दैट्स क्रेजी. मतलब नेपाल इज मैड. नाउ आई कैन सी द एलोर. यहाँ पे मुझे दिखा भाई, बेस कैंप पे तुम्हें पिज्जा मिलेगा, तुम्हें क्या चाहिए और. हाँ, नहीं, बिकॉज़ द प्रॉब्लम इज दिस आल्सो ना, कि लाइक this is what I think is going to fix travel for a lot of people. Yeah, you start with this and then you're like, I can push myself a little more. नहीं, वो हम रुक जाएंगे बस. जैसे होता है ना, गैम्बलिंग में एक चीज होती है, लग रहा है तुम रुक जाओगे सर. गैम्बलर, स्मार्ट गैम्बलर कौन होता है? जो फायदा होते ही अपना पैसा बाहर निकाल लेता है ना. ये रही, इनकी तरह नहीं बनता है कि लगाए जा रहे हैं, डूब गए, कर्जे में है, नहीं अभी जीत जाऊंगा. अरे क्या यार, जहां से बच गए वापस आ गए किसी तरीके से, भाई साहब नीचे आए. मैं वो इंसान हूँ, आई एम सो ओल्ड लाइक दिस, विद वन पान इन माय, भाई साहब वहां से वापस आ गए, ये बहुत बड़ी बात है. दोबारा नहीं जाएंगे. There's something that you said थोड़ी देर पहले, मैं उस समय उसको ट्रैक बैक नहीं कर पाया था, बट दिस इज समथिंग दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नाउ थिंक अबाउट, कि what is the, when you travel abroad, what is the reputation of Indians, and is it not necessarily from the India point of view, geopolitics के point of view से नहीं पूछ रहा, ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पर्सनल कैटेगरी में, और कौन से देश हैं जो अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, और कौन से देश हैं जो ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है वहाँ पे इंडियंस के लिए ट्रीटमेंट? सी, with the experience that I've had, Italy and France में मेरे को racism feel हुआ है, where I think just generally Indians are considered थोड़ा loud, थोड़ा smelly because of the food. एक बारी फ्रांस में एक जगह, थोड़ा पेरिस के थोड़ा दूर था, it's a very low key place that people don't usually go to. एक Airbnb किया था मैंने, and वहाँ पे बहुत this old woman, I think she was
शी वॉज नॉट फ्रेंच, शी वॉज ब्रिटिश. तो वो वॉज शी ब्रिटिश, आई डोंट नो, वहाँ की, शी वॉज फ्रेंच ओनली, सॉरी. तो वो मेरे को बोल रही थी, शी इज़ लाइक ओ योर, एंड तो देख के पता चल जाता है कि भाई हम इंडियंस हैं, सो पीपल डोंट यूजुअली आस्क ऑल्सो कि ओ अच्छा यू, दे जस्ट दे लाइक ओ यूर फ्रॉम इंडिया. तो बोलती कि आई लव इंडियन फूड. मैं कहा ओ या यू नो आई कैन यूज़ योर किचन, आई कैन मेक सम दाल फॉर यू इफ़ यू रियली लाइक इट. दैट वाज मी बीइंग नाइस बिकॉज किचन भी तो इंक्लूड होता है एयरबीएनबी में. शी सेड नो आई डोंट वांट द हाउस टू स्मेल. कैसे इंसान हो तुम जो तुम्हें खाने की स्मेल अच्छी नहीं लगती. एंड लाइक दिस, सी फॉर देम आई गेट इट, दे आर नॉट यूज्ड टू, देयर लाइफ इज़ वेरी बोरिंग व्हेन इट कम्स टू फूड. सो मे बी आई गेट इट, बट दिस ये होता है, थोड़ा फील होता है. नॉर्वे आई डेंट फील. ऑस्ट्रेलिया आई डेंट फील, सरप्राइजिंगली. आई हर्ड ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने बहुत सुना है. मैंने भी बहुत सुना था, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस वर one of the very few nationalities that I've really enjoyed working with. I've done I think 3 campaigns with them, with the tourism board. All the locals I've met there, बहुत sweet. The brand plugs just come naturally to her. ब्रांड प्लग खाता है, ये तो टूरिज्म बोला मैंने. टूरिज्म बोर्ड का भी कर दिया, बताओ दूसरे देश का भी. ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा, आई लव द कंट्री, इट्स जस्ट अमेजिंग, आई लव ऑस्ट्रेलिया. और कहाँ, सिंगापुर बहुत अच्छा था. सिंगापुर में भी मेरे को नहीं फील हुआ. आई थिंक एशिया में जनरली यू फील लेस. थोड़ा नाम खराब होते जा रहा है इंडियंस का, बिकॉज मोर इंडियंस ट्रैवल एंड देन वी don't know where to draw the line. I've seen that a lot, which sucks. Hopefully we improve. But yeah, France, Italy, not good. Norway, good. Finland, good. Switzerland, good. So I think all the countries that do a lot of tourism, they know Indians की value बहुत है, क्योंकि हम बहुत tourism देते हैं. So there the treatment is nicer. अच्छा, समझ. Comparatively, yeah. You've been to Japan? नहीं, नॉट येट. मैंने रील्स पे इतना देख लिया, हमने वहाँ जाके मैं सरप्राइज ही नहीं होंगी. सो आई जस्ट वांट टू गिव माई सेल्फ अ लिटिल टाइम बिफोर आई गो. Japan has really seen, वो reel to Japan ratio is very high right now, and everyone is going and everyone is having a great time obviously. I मुझे समझ में आता है, मतलब एक कंट्री जो कि मैं कभी अपनी पूरे लाइफ में अगर मुझे लगा एस्पायर किया मैंने कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो वो एनीमे देखने के बाद ऐसा लगता है कि अगर मैं एक जापान के गांव में किसी तरीके से रिटायर हो जाऊँ तो कितना अच्छा होगा. राइट, दैट क्लासिक जिब्ली जापानीज विलेज, राइट. बट यू नॉट बीन देयर. नहीं. साउथ कोरिया हैव यू बीन? नहीं. Okay, so you're not very keen on the Asian. I am, but I'm just taking my time because Do you my not watch motivation. K-dramas? No, I don't. And my motivation to travel does not come from virality. My motivation to travel comes from where I want to go. That's how generally I've been seeing my work in Instagram also. अब वो जापान इतना ज़्यादा वायरल हो गया, and I don't have the wish to go immediately to Japan or even South Korea for that matter. South Korea में जाऊँगी तो मैं सिर्फ स्किन केयर के लिए जाऊँगी और हॉलीडे के लिए जाऊँगी. मे बी आई वोंट डॉक्यूमेंट दैट ट्रिप, एंड या मे बी नेक्स्ट ईयर आई डू साउथ कोरिया. थाईलैंड आई लव थाईलैंड. सो इन एशिया में और कहाँ गई हूँ मैं? सिंगापुर आई रियली लाइक ऑल्सो, बट हाँ, थाईलैंड आई हैव एन्जॉयड सो मच. आई थिंक थाईलैंड जैसा टूरिज्म करता है भाई, देव एस्ड इट. एग्जाम्पल? Food availability is crazy. For people who still want to have Indian food, there's so many options. There's so many activities to do, and it's very accessible to Indians क्योंकि थोड़ा सस्ता है, and also it's not that far away. You get cheap flight tickets also. Indigo has also started direct flights. मैं अभी Indigo में ही वापस आई थी. Indigo is a direct flight to from Delhi to Phuket. Crazy. Yeah. How much did it cost? You remember? 20. Which is reasonable. Yeah, very reasonable. मतलब 20,000 की गोवा की फ्लाइट आती है, गोवा बॉम्बे की फ्लाइट आती है. तुम इससे बेटर तुम थाईलैंड चले जाओ एंड तुम्हारा सेम ट्रिप का कॉस्ट होगा. आई रिसेंटली बुक्ड एन एयरबीएनबी फॉर 4 people इन को सामुई. बिल्कुल बीच पे था. 4 bedroom अपार्टमेंट विद अ पूल. आई बुक्ड फॉर 5 days फॉर 2 lakhs. अब तुम कॉस्ट डिवाइड करो, ये कितना सस्ता है, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है. विद अ किचन एवरीथिंग. भाई बहुत अच्छी जगह थी वो. सो थाईलैंड हैज रियली डन. आई थिंक थाईलैंड में डोमेस्टिक फ्लाइट्स आर आल्सो वेरी चीप. सो दे आल्सो इनकरेज बाय द वे. आई थिंक देयर फेरीज होती हैं कितना. इट्स वेरी इजी टू ट्रैवल इन थाईलैंड, एंड स्पेशली इफ यू गोइंग विद फ्रेंड्स. पार्टी करने के लिए थाईलैंड क्या मस्त जगह है. एंड देन ऑल्सो इफ यू ट्रैवल विद अ ग्रुप, कॉस्ट डिवाइड हो जाता है तो सस्ता पड़ता है जनरली. या आई थिंक दिस इज वेयर द ग्रुप थिंग शाइन्स. या have you I've seen some videos of you where you solo travel, but are you pro solo traveling or are you? I'm not pro solo traveling. मतलब it's great for people that it works for, but मेरे को नहीं अच्छा लगता solo travel करना. I don't get bored. I just
I don't get the I don't like to do it. I just I'm sure it's an excellent experience. Those who travel say so wonderful things about and it. honestly, I think people who are able to solo travel, I think they're so strong. By hats off to you, hats off to everyone. मेरे से होता नहीं बस. I don't. Have you ever solo traveled? I have. You've done 2-3 videos, right? How was the experience? अच्छा था, but I think after a point I was like, I want to share this with somebody. हाँ, समझ. Yeah, right. so and you do actually end up meeting a lot of people when you travel that solo. is the allure of solo travel, that you actually and then I think after a while I don't want to make so many friends. I think वो मेरा social battery थोड़ा down हो गया. So maybe that's one reason I don't like to travel solo anymore. But हाँ, मैंने ज़्यादा अपने career में, अपने traveling years में इतना solo travel किया नहीं. I just never liked. I also think those are like really brave people, because you're actually मतलब just the idea कि like I'm alone anywhere. Yeah. I think बड़ी हिम्मत चाहिए होती है. And I think agree. Those are really strong people. I'm obviously, अगर किसी ने अब तो दिखाई दे रहा है कि मतलब सोलो ट्रैवल तो शायद मेरे दूसरे जन्म में भी नहीं हो पाएगा मेरे से. If you ever want to challenge yourself, you want to challenge yourself, तुम जाओ एक सोलो ट्रिप पे, मजा आ जाएगा तुम्हें. जिंदगी का सारा सब दिमाग खुल जाएगा सब. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि पेशेंट दवा खाए तो उसको पहले ही इंजेक्शन और सर्जरी के बारे में मत बताओ, है ना. उसको पहले अगर दवा टैबलेट से काम चल सकता है तो वहां से पहले चालू करना चाहिए ना. डॉक्टर साहब आप बात समझिए. फेयर पहले नॉर्दर्न लाइट्स 6 महीने बाद सर्जरी के बारे में बात करें. हाँ, पहले तुम नॉर्दर्न लाइट्स के लिए जाओ, फिर हम नेक्स्ट ट्रिप तुम्हारी प्लान करेंगे इंडिया में, ठीक है. वीजा इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड. Hate it. यू ट्रैवल सो मच. हाउ डू यू क्या आपको डू यू कीप अप्लाइंग? डू यू गेट मल्टी-ईयर वीजास? नो, सो अभी मेरे को शेंगन थैंकफुली मेरे को मिला 2 साल का. एंड आई वाज काउंटिंग माय शेंगन वीजास. दिस वाज माय 10th शेंगन वीजा. Imagine the amount of money I've spent on Schengen visas. Please tell more about the Schengen visa. How much can you cover in this? Is it all your? हाँ, so you apply in different countries. Usually जिस country में तुम्हारा या तो तुम सबसे ज़्यादा time spend कर रहे हो, or the first country of entry, you apply to that country. And then once you've entered that country, then you can travel anywhere in Europe. ये Schengen का एक advantage है. So they don't question. First जो Schengen visa होता है, I have started seeing that people get a longer visa now. I don't know how, but usually ऐसा होता है कि first जो तुम्हारा visa होता है वो तुम्हें उतने टाइम का मिलता है जितने टाइम का तुम अप्लाई करते हो. 10 दिन की ट्रिप होगी, 10 दिन का वीज़ा मिलेगा. एंड सिंगल एंट्री, यू गो टू द ट्रिप एंड यू कम बैक. एंड देन द मोर यू अप्लाई, द मोर यू शो कि तुम ट्रैवल करते हो, बैंक में पैसे हैं, फिर वो तुम्हें एक्सटेंड कर देते हैं. इस थैंकफुली मेरे को अभी 2 साल का मिला. एंड आई हैव ऑलरेडी बिन टू यूरोप ट्वाइस. एंड आई वाज लाइक, भाई वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ा. एंड इमेजिन द पीपल देन हु डोंट हैव टू अप्लाई फॉर एनी वीज़ा एट ऑल. हाँ भाई वो क्या लाइफ है. मतलब I think that is the freedom that a traveler actually wants. Yeah. Is there, what are the countries that India does not require visa for in your experience? कोई है कहीं आप गए हो जहाँ पे वीजा नहीं लगा? हाँ, थाईलैंड नहीं लगता वीजा. थाईलैंड नहीं लगता? थाईलैंड नहीं लगता. Is it on arrival? Visa on arrival, yeah. It's on arrival. Visa on arrival. सिंगापुर का ऑनलाइन होता है. अच्छा एक मिनट. हाँ. लोगों को इसके बारे में नहीं पता. What does a visa on arrival mean? Visa on arrival mean you reach and then they just let you go. But on arrival is there any situation कि मैं वहाँ गया और बोला कि नहीं आपको नहीं अराइवल पे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता. ऐसा कभी नहीं होता. जैसे थाईलैंड you need to fill a form before you arrive, just like personal details and stuff, and then उनके सिस्टम में आ जाता है. You go, they just stamp your passport and you are free to go. नेपाल, भूटान, श्रीलंका, all visa free. और 1-2 और भी हैं. I'm not able to remember. In the Middle East, I think थोड़ी countries हैं जहाँ पे allowed है. But yeah, I don't remember. We don't have that many countries. We don't have that many countries. ठीक है. But when you apply for these visas, which ones are is there a visa that is easier to get or something like that? हाँ, of course. Australia, New Zealand online apply होता है, paper मिल जाता है. अच्छा. Easier. You don't have to go anywhere. No, you don't have to go anywhere. जिस पे स्टैम्प लगता है वो मुश्किल होता है. आई थिंक अब जापान का भी ई वीज़ा आ गया है. आई एम नॉट श्योर. पहले व्हेन आई वाज प्लानिंग टू गो, ट्रिप कैंसिल हो गया था मेरा. व्हेन आई वाज प्लानिंग टू गो तब बहुत लंबा प्रोसेस, अपॉइंटमेंट लेनी, VFSC जाना पड़ता था, पासपोर्ट देना पड़ता था. US इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउ, तो इट्स बिकम मोर डिफिकल्ट. शेंगन इज़ constantly difficult depending on also the country you apply to. Abhi I think France has been giving out generally more visas than usual. Switzerland is easier because of tourism. Baki I know Germany is slightly more difficult. Norway is difficult. हाँ, तो उनका acceptance rate थोड़ा कम होता है generally compared to other countries. Have you ever applied for a visa and not gotten it? Yeah, US.
उसके बाद तो मैं तब मूड ऑफ हो गया था मेरा, मैं कहा जानना ही नहीं मेरे को तुम्हारी किस साल कंट्री। की बात है? 2021 की बात है, एक बार ही रिजेक्ट हुआ था एंड उस टाइम तो प्लान भी कर रही थी मैं, मेरे को जाना था। ये बचपन से एक यूएस का इंडियंस को अलग अलग चुल होती है राइट, एंड माई मामू स्टेज इन द यूएस, तो मेरे को बचपन से एंड आई एक्चुअली गॉन टू द यूएस वंस एंड आई वाज 2 years old। होते थे वो लोग वीजा को लेके। आई रिमेंबर मेरा 2016 में जो वीजा लगा था वो 2026 तक वैलिड था। इट वाज 10 year visa। दे यूज्ड टू बी वेरी नाइस। या एंड आई थिंक मेरा उस टाइम रिजेक्ट हुआ था बिकॉज आई हैड जस्ट गॉन टू रशिया। अब वो वॉर के बाद था बट फिर भी आई डोंट नो व्हाई दे रिजेक्टेड। हाँ, तो वो मेरा रिजेक्ट हुआ था। आई लास्ट ईयर आई अप्लाइड अगेन, मेरा थैंकफुली एक्सेप्ट हो गया था बट आई वाज फुल्ली प्रिपेयर्ड। रशियन एजेंट वी जस्ट दैट पीपल डिड नॉट नो, ओनली द यूएस पीपल नो। अभी एंड पता है हमारा कितना वीक है पासपोर्ट। जब तुम यूएस वीज़ा के अपॉइंटमेंट ले जाते हो तब तुम्हें पता चलता है कितना वीक हमारा पासपोर्ट। एंड यू सी सो मेनी पीपल देयर लाइंड अप एंड मेरे सामने कितने वीज़ाज रिजेक्ट हुए थे फॉर रैंडम रीजंस। एंड इट हैज़ बिकम स्कैरियर, लाइक इट्स लाइक आई जेन्युइनली डोंट फील द विल टू ट्रैवल टू द यूएस एनीमोर। कि जितना बचपन में होता था कि यूएस 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 बिकॉज अवेयरनेस उसी की थी। नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए, वही वाली बात है कि अब हम तो जियोपॉलिटिक्स को चेंज कर नहीं सकते, ऑब्वियसली इट विल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट अ कंट्री दैट डज नॉट वांट यू, आई डोंट थिंक दैट्स द बेस्ट प्लेस टू गो अनलेस आपको काम से जाना है तो आप जाओ। ऑफ कोर्स, बट ट्रैवल करने के लिए यू कैन आल्सो गो टू अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज। Europe is so vast and it's also by the way, I don't see the allure of like traveling to US. I'll tell you why, because वही वाली चीज जो आपने जापान के लिए बोली, आप बहुत कुछ जानते हो उसके बारे में, you will not be that surprised. And also there are a few places in the US I really want to visit. Yosemite is one, national park जो है, Yosemite is one, Hawaii is one, Alaska is one. Yes. So I do obviously, and नॉर्थ अमेरिका, कनाडा का वीज़ा भी अप्लाई नहीं किया मैंने, बट आई थिंक इट्स ईजियर देन द यूएस फॉर श्योर। हाँ, कनाडा जाना है, बहुत कुछ है। Have you had any nightmare experiences इमिग्रेशन वगैरह में? कभी आपको प्रॉब्लम है? कभी इमिग्रेशन में नहीं, नॉट रियली। नहीं पासपोर्ट फाड़ा नहीं, बट एक वियर्ड चीज़ हुई थी। सऊदी जाना था मेरे को एंड आई सेंट माई पासपोर्ट फॉर द वीज़ा, स्टैम्प वीज़ा लगना था एंड उन्होंने, तो मेरा नया पासपोर्ट आया था, वो पासपोर्ट जो जहाँ से मेरे को मिला था पासपोर्ट, मेरा ओल्ड पासपोर्ट वो स्टेपल टू माय न्यू पासपोर्ट। दैट्स हाउ यूजुअली इज। मैंने पासपोर्ट दोनों अपने पासपोर्ट देखे, क्योंकि स्टेपल्ड है, मैं तोड़ूंगी थोड़ी उसको। उन्होंने फाड़ दिया पासपोर्ट, निकाल दिया स्टेपल्स, पिछला वाला, हाँ निकाल दिया, पासपोर्ट के अंदर पेन से लिख दिया, पीछे लिख दिया कुछ एंड आई एम लाइक, ये मतलब आई वाज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन आई गॉट द पासपोर्ट बैक। आई एम लाइक, इज दिस इवन अलाउड? हाँ, that was very very weird. They sometimes ruin the passport. हाँ, बहुत गुस्सा लगता है कि उस बार हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है कि this is clean. हाँ, obviously, and like I didn't know you can actually write in your passport. I don't know. I think they can write. I don't think we can write. I think they can write. And I haven't been questioned on it, thankfully. But I hope I'm not in the future also. But ये चीज़ हुई थी, और एक दो बारी immigration, like when I landed in Europe, I was asked more questions than usual. Example किस तरह के सवाल? ये वीज़ा तो तुम्हारा ग्रीस का है, फॉर एग्जाम्पल ग्रीस का है, व्हाट आर यू डूइंग इन जर्मनी? एंड देन आई हैड टू टेल देम यू आर अलाउड टू ट्रैवल, और लाइक यू जस्ट टेल देम कि इसकी ट्रिप के बाद मैं यहाँ पे जा रहा हूँ या ट्रेन ले रहा हूँ, बिकॉज ट्रेन ट्रैवल इज़ वेरी पॉपुलर इन यूरोप। तो ये हुआ था, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे, दे समटाइम्स लुक एट यू फनी, डर तो लगता है कि ओ शिट मेरे को वापस भेज दे तो, बट आई थिंक दैट्स जस्ट जनरल एंग्जाइटी दैट यू गेट। देम सेंड पीपल बैक। Really? Yeah, in front of my eyes I've seen people send people back. तभी एक ये भी होता है ना, जो एंग्शियस ट्रैवलर होता है वो अपनी ज़िंदगी में जो 2-4 बार ट्रैवल करता है, उसी में उसकी किस्मत भी ऐसी ख़राब होती है कि उसे सब देखने को मिल जाता है। We went to the US in 2015 because we were representing India at NASA for a competition called the NASA Rover Challenge. Wow. Every year 4 teams build a human powered rover to maneuver on the surface of Mars, and we go to the US, Huntsville, Alabama. We take our रोवर विद अस, और वहाँ जाके हम उसको रीअसेंबल करते हैं, फिर रेस करते हैं। That's so cool. हाँ, पर हमने क्या किया, हमने कॉस्ट सेविंग करने के लिए, और हमारे सीनियर्स ने भी बताया था कि आप ऐसा कर सकते हैं, हमने कॉस्ट सेविंग करने के लिए अपने लगेज में ही अपनी बग्गी को डिसेंबल करके रखा था, इंस्टेड ऑफ कार्गो शिपिंग इट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आप उसे अगर कार्गो शिप करते हो तो कब पहुंचेगा, और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे लोगों के साथ होता है शिपमेंट से पहुंचा, देर पहुंचा, लैंड नहीं किया। सो एवरीवन सेड कि इसको साथ में ले जाओ। बट लेकिन देन इमेजिन कि जब वो हमारा लगेज स्कैन कर रहे तो उनको क्या दिखेगा। हाँ, ठीक है। उसमें से हमारा एक दोस्त है, ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द टीम, आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द टीम, एंड हिज नेम इज बिलाल, और वो कंटिन्यूसली बोल रहा था कि जब शाहरुख खान को रोक लिया तो मैं कौन हूँ, है ना। उसने 1.5 साल, जब हम ये बना रहे थे रोवर, तो उसने 1.5 साल ही बोला हर चौथे दिन कि जब शाहरुख खान को रोक लिया तो मैं कौन हूँ, मुझे तो रोकेगी। भगवान जानता है, जैसे ही इमिग्रेशन आया, यू गो बिलाल हसन खान प्लीज तुम आ जाओ।
और उसकी किस्मत इतनी खराब, बाहर निकल के उसने इतनी गाली दी, उसने कहा तुम लोग कम से कम पाना हथौड़ा तो किसी और के बैग में रख सकते थे ना, तुम्हें पता था कि दे आर नॉट फ्रेंडली टू मुस्लिम्स एट इमिग्रेशन, दे आर स्लाइटली मोर स्ट्रिक्टर, क्लियरली एवरीवन नोज, तो मेरे वाले में ही सारे औजार क्यों रखे, ठीक है, पाइप लेकर क्यों जा रहे हो? And they were very strict, by the way. They were very strict. Obviously they let him go. उसकी फ्लाइट छूट गई थी, फिर वो दूसरी फ्लाइट से आया था, और वहीं पर मैंने देखा था कि there was this kid who was traveling with a guardian, and they did not allow the guardian to go. They said कि बच्चा चला जाएगा, आपको क्या जरूरत है जाने की? This is literally what we saw. US has always been very problematic. This was the reasoning. They said कि ये बच्चे को जाना है, तो उसने बोला कि आप बात समझिए, वो मेरे दोस्त हैं और मैं इसको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, ये मेरी रिटर्न टिकट है, उसने दिखाया। उसने थोड़ी देर देखा एंड देन ही टोर द बोर्डिंग पास एंड सेड कि नहीं आप चले जाओ वापस, आपको कोई जरूरत नहीं जाने की। क्या यार, क्या फिर वो बच्चा बेचारा रो भी रहा था, इट मेक सेंस, इतना छोटा बच्चा है वो अकेले। तो यूएस का समझ नहीं आता, यूएस का पूरा कंट्री तो हमारी वजह से चलता है, like because of immigrants, like it runs because of immigrants. The smartest people there are immigrants, but yeah, it's very sad. क्या करें? And also, I don't think वो उसको भी जाने देने वाले थे, but we started creating a lot of commotion because of it. कि students जा रहे हैं और हम नासा जा रहे हैं, हमें क्यों रोक रहे हो, हम मतलब हम क्रांतिकारी, हाँ हम क्रांतिकारी बनने लग गए थे वहाँ पे। I think they realized कि they're going to like make a fuss about it, so I think they let him, वरना वो मुझे नहीं लगता कि वो बिलाल को भी जाने देते, उनका मन नहीं था, मतलब उसने तो यही बोला, उसने कहा उसका मन तो नहीं था मुझे जान देने का, उसने मेरा because they took his passport, they took his boarding pass, and generally when he went and passport ले लिया तो फिर तो भाई, हाँ वही, that is when you start getting scared. हमने क्या किया था, we did something obviously foolish in the क्योंकि thankfully so this was routing to Abu Dhabi, तो जो आबू धाबी का जो इनबाउंड इमिग्रेशन, जो आउटबाउंड इमिग्रेशन था, they were very helpful. I think they were nicer to us. तो ऐसा था कि some of those doors they only open in one direction, right? So when you cross one layer you don't go back. तो हम क्या कर रहे थे, वहाँ खड़े रहते थे डोर के पास कि जब कोई आएगा तो हम इधर से उल्टा चल जाएंगे, क्योंकि हम सारे बाहर आ गए, वो नहीं निकला, जब 10 मिनट तक निकला हमने कहा ये तो गया भाई साहब, तो फिर हम उल्टा चलना शुरू हो गए, हर डोर के बाहर ऐसे खड़े हुए बात कर रहे हैं, जैसे कोई आ रहा है फिर पीछे जा रहे हैं। सो द मिनट वी रीच द इमिग्रेशन पॉइंट दे फ्रीक्ड आउट कि ये वापस कैसे आ गए, राइट? सो द दुबई इमिग्रेशन वाज नाइसर टू अस, दे सेड कि नहीं, लेट देम स्टे, ऑब्वियसली देयर फ्रेंड इज देयर। देन वन ऑफ आवर सीनियर्स वेंट इनसाइड, तो उसको भगा दिया, फिर मैं गया, फिर मैंने वहाँ क्रांतिकारी करने की कोशिश की कि why have you stopped this guy, is it because he's a Muslim? तो अब वो यार इसका रोकना इसको था, मुझे पता है वो लोग कोने में जाके बोल रहे थे कि रोकना इसको था, सारे हाँ भाई इसको छोड़ो, इसका पासपोर्ट देखो जा, ये क्या कर रहा है। बट so I think that is the thing, but generally I think a lot of people worry about this, कि like when they travel, it's a fair thing to worry about honestly. अब हम जिस कंट्री से आते हैं, अब have you ever had, आपका कभी कोई सामान चोरी हुआ किसी देश में? नहीं। आपने चोरी किया है? नहीं, टच वुड, मैंने कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, और कुछ होना भी नहीं चाहिए। तुम सामान का ध्यान रखोगे, आई थिंक दैट्स लेस लाइकली थिंग्स, बट ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, एंड यूजुअली खो जाना इज मोर लाइकली, आई थिंक। यार जैसे मैं जाती नहीं हूँ वो जगह जहाँ पे, लाइक आई डोंट लाइक टू सी सिटीज सो मच एज कम्पेयर टू, लाइक आई एम यूजुअली ऑन द माउंटेन्स और आई एम मोर इन द नेचर, वहाँ पे लेस लाइकली थिंग्स हैपन, सो आई डोंट नो, नहीं हुआ मेरे साथ, टच वुड। Have you been on, what is your opinion about cruise? Do you like cruises? Not really. मुझे नहीं अच्छे लगते इसलिए मेरे को भी नहीं। एक क्रूज का एक्सपीरियंस था मेरा, अच्छा नहीं था, बिकॉज आई थिंक इट्स मोर फॉर फैमिलीज एंड, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन फैमिलीज जब ट्रिप प्लान करते हैं तो वो लोग क्रूज के लिए बहुत सेंट्रिक होते हैं, बट आई गेट द अपील फॉर families to go on cruises. It's great because you have children, there's a lot to do on the cruises, just one stop, everything is it like दिल धड़कने दो जैसा दिखाया है वैसा ही है? Some cruises can be, like I was on a cruise, but उसका motive बहुत अलग था. It was not a, what was the motive? Motive was, it was an expedition to go above Tromsø in the north and go look for orcas so that you can swim with them. So that is not your classic cruise. It was more of an expedition. These things I love to do. जैसे Antarctica जाना तो वैसे ही जाना पड़ेगा ना. But general cruises for fun, no. That's not something that I'm very appealed to do. But I get it. It can be a lot of fun for a lot of people क्योंकि एक one stop destination for everything. You have activities for children, activities for yourself. You just go and you, मतलब एक हफ्ता whatever जितना भी लंबा है, and then all your problems have a solution. Travel problems have a solution essentially. So I get the appeal. Continuously traveling in a hotel. Yeah.
of sorts, right? Yeah. But मेरे से नहीं होता. But What is the concept of cruise? जहाँ वो रुकते हैं वहाँ पे आपको उतरने दिया जाता है थोड़ी देर के लिए. हाँ तो. And then you go and explore and come back. Yeah. एक टाइम दिया होता तुम्हें, जाओ एक्टिविटीज करो, वापस आ जाओ. I can already imagine my fear is telling me कि मेरे वापस छूट जाए, मतलब जब मैं वापस आऊँगा तब तक मेरे साथ भी ऐसे होता, बट वो नहीं ऐसे छोड़ के नहीं जाते. वही मुझे फीलिंग वही आई जाएंगे तुम्हें छोड़ के, मैं रह जाऊंगा. जिससे अगर तुम्हारे पास वीजा है, वेरी लेस लाइकली कि तुम्हें इमिग्रेशन नहीं जाने देगी. लेस लाइकली. एंग्जाइटी होना इज फेयर, बट लेस लाइकली कि ऐसा कुछ होगा. या you would you, is there any cruise that you think is doable? एंटार्क्टिका. इंसान से बात करने का प्रॉब्लम ये होता है ना कि उस इंसान की एंटार्क्टिका तो मेरे को जाना है, मुझे शिप में समझ में नहीं आती. But yeah, Antarctica will be insane. Really want to do Antarctica. Moving on. Yes. No, अच्छा ठीक है. There is one more follow-up question from the thing that we were talking about, which is that you've been to other countries, so it makes sense to ask you क्योंकि मुझे भी बहुत curiosity होती है. Are there any countries where you've seen they are quite like Indians, where Indians will feel more like at home? ऐसा कोई ऐसा country लगा आपको? Singapore, like, some people Thailand. say Mexico is a country where Yeah, Mexicans yes are very similar. Taste buds थोड़े similar हैं हमें. Work culture, work ethic थोड़ा I think Mexicans में, I'm not sure, but at least anywhere you travel in Asia you don't feel very like नेपाल स्पेशली. अगर तुम नेपाल जाओगे तो मतलब तो हमारे लोग. नेपाल भूटान में बहुत डिफरेंस है. भूटान वाले बिल्कुल, भूटान वर्क्स वेरी वेरी डिफरेंटली. श्रीलंका डजंट वर्क डिफरेंटली. श्रीलंका जाके भी लगे घर पे ही हो. एंड अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन एशिया यू सी द सेम हसल, यू सी द सेम chaos, so you kind of feel at home, I would say. Quick on India. Where in India can you feel almost like you're not in India anymore? Ladakh, 100%. Ladakh, parts of Kashmir, Meghalaya, all of Northeast, I would say, does not feel like India. Yes. There is a different experience. Yeah, it is, for sure. And so much to experience. मतलब it's insane to think हमारी country offers so much. Like, from coastal beaches to snow-capped mountains, high-altitude treks to bloody waterfalls. It's insane जितना हमारी country offer करती है. So I think before you start looking outside the country, for people who are just starting to travel out, go explore India. इतना सब है हमारी country में. It is insane. There's so many things that I have yet to see. लद्दाख और स्पीति तो बहुत cover किया है मैंने, पहाड़ बहुत देखे हैं. But I want to go explore the south a little bit. I recently went to Meghalaya. Meghalaya was insane. मतलब इतना लग नहीं रहा था. I went with zero expectations and I came back like क्या हुआ ये क्या. I would love to go back again. I would love to go to Arunachal, Mizoram, for sure, and south मेरे को थोड़ा explore करना है, but so much to see in India. Our country is beautiful. But what is the festival that is going viral right now? Kalpa में. We were just talking about it. Have you? I have not seen it, but I've been to that area a lot. मतलब बहुत गई हूँ मैं. I love Kinnaur so much. मेरा actually first few trips that I took from college, Kinnaur was a life changing one. तो मेरे को लगा था कि oh shit, ये क्या, ऐसे पहाड़ भी exist करते हैं, ऐसी जगह भी होती है. Yeah, that was a very very moving trip for me. और उस टाइम जब मैं गई थी कोई नहीं था उधर. There was only me, my friend and another bike पे 2 लोग I think केरला से आए हुए थे अपनी बाइक लेके, and that's it. पूरे किन्नौर में कुछ भी नहीं था तब. So that was just insane. You recently bought a new car, right? Do you travel? Congratulations, by the way. Thank you. Do you travel? Do you like to travel by like? Love driving. Road trips tip? Love driving. Okay. बहुत. What is the Delhi से road trip good option? You the one that you like? Ladakh. Other than Ladakh, people know about Ladakh. Spiti. Obviously, Spiti is. If you can do Ladakh, I tell everyone to do Ladakh. Even people I meet out of the country, I tell them to go see Ladakh. But I think when जब तो हम दिल्ली में होते हैं ना, हम रियलाइज़ नहीं करते पहाड़ कितने पास है हमारे. When you are flying to Ladakh, literally within 15 minutes you start seeing mountains, and then you realize कि shit map में ऐसी like stuff you know already, then you see and then you realize कि oh shit, ये तो सही में it's real, right? Delhi इतना ऊपर है, and I think we don't take
enough advantage of it, especially when you meet people from say Bombay and लोग बोलते हैं कि shit उनको फ्लाइट लेनी पड़ती है दिल्ली तक, फिर कितने दूर है वो, they are far, हमें और जाना चाहिए पहाड़ों पे, हमें और देखना चाहिए, क्योंकि like insane, like especially if you're driving to Spiti, क्या रोड ट्रिप है, my god, 3 दिन लद्दाख भी 3 दिन लगते हैं, स्पीति कंफर्टेबली 3 दिन लगते हैं, लद्दाख थोड़ा ज़्यादा एडवेंचरस है, थोड़ा किलोमीटर वाइज. Would you stop then? Will you not drive throughout the day and या कैसे करते हो? No, you don't drive throughout the day. You drive 7 to 8 hours a day. On some days slightly lesser. But अब स्पीति रीच करना आसान हो गया, रोड बहुत अच्छी कर दी है. Like BRO works tremendously well. They've created such insane roads for us. तो अब जो जर्नी है it's less tiring. But it's just equally adventurous. It's insane. Spiti तो बहुत बहुत अच्छा road trip है. I still have yet to explore Uttarakhand and go on a couple of road trips in Uttarakhand. So hopefully next year I'll have more to talk about I think, road trips. But हाँ. We've also run out of time with you, and I think that is classically the India podcast will happen the next time we see you. Yeah. Right. For sure. But I'm actually happy कि we spoke about other countries. So I'll tell you why. इंडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन ऑल्दो इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री, जितना देखो उतना है, पर इंडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन फिर भी थोड़ा सा फर्स्ट हैंड मिल जाती है. कोई आपको कुछ तो बता देगा, बट आई डोंट हैव फ्रेंड्स एंड मेनी पीपल डोंट हैव फ्रेंड्स जो कि आपको बता सके कि लाइक व्हाट इज नॉर्वे लाइक, व्हाट इज आइसलैंड लाइक. आई थिंक दैट इज व्हाट पीपल आल्सो want to know more about first hand. I think it is scary to plan a trip to Europe क्योंकि information, while there is a lot of information, you can't trust it. As an Indian you feel like तो हमें शक करने की आदत होती है, तो हमें ऐसा लगता है यार ये बोल तो रहे हैं लेकिन ऐसा होगा थोड़ी. हाँ exactly. So on the side I also yeah मेरी एक travel company भी है, तो last year it's called Kigo. And that is short for the plugs don't stop, keep going. Okay, so abhi recently we've started planning trips for Europe for people. तो मैं तो operations में हूँ नहीं, मेरा जो दोस्त है operations में है, he keeps telling us the stories. People, it's very difficult for people to trust Europe. बहुत हमें हमारे टीम से बहुत energy, बहुत time लगता है to you know, because information while there is वो हाँ you're right, वो trust नहीं होता, समझ नहीं आता कि real भी है कि नहीं है. But yeah.